Hi, very good evening. In fact, very good morning to everyone. Because I always feel that it's a morning. So it's raining like cats and dogs in Mumbai, and people are enjoying at home with bhajia, vada pav, chai, and it's a nice time. It's a sleepy time. But today being a Guru Purnima, I decided to come Facebook Live, and before I start speaking much on this topic, my experience as a trainer, I want to chant one shloka: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Guruve Namah. So, my namaskar, my pranam to all guru of my life, and especially I want to thanks my guru who has guided me that you should come Facebook Live instead of recording video. Why don't you come Facebook Live? And that guru is Mr. Arvind. He told that if you go Facebook Live, more people will listen to me. But when I see that only 3 or 4 people watching, so he told me that initially it will happen that only you will find that only few people are watching you. But later, like people will start following you. So thanks Arvind for guiding me, and he's also guiding me that how you should look good while being a Facebook Live. Like he has suggested me so many things. If you want to become a YouTuber, you purchase some YouTube cameras, YouTube tools, and all backgrounds and everything. And in fact, I also like to thank my little daughter Anjani, because nowadays, like she is teaching me a lot of things like how to sing and how to expressions while doing TikTok. But of course we both have decided to delete TikTok, and eventually even government has also decided to delete TikTok. So being a today Guru Purnima, let's discuss something. It's not something about teacher and student. So today I'm going to discuss about ancient gurus also, and recently what is the connection of recent, because I have seen that in every Guru Purnima we discuss about Ved Vyas and all those Vedas, but situation keeps on changing. So do you think that the relation of Guru and Shishya has also been changed? Yes, of course, it has been changed a lot. Now, before I start, I want to tell one story to you all of you. There was one saint. What he has done, he used to sit under tree, and जब वो somebody has told me, message me that you speak in Hindi also. So of course I'll speak in Hindi. When I remember Anand Kumar, so I always thought that why should I speak in Hindi? I'll tell you in my later story about Anand Kumar also. From Bihar on which Super 30 is also based. So एक संत थे, वो एक झाड़ के नीचे बैठा करते थे, और झाड़ के नीचे बैठकर वो काफी टीचिंग्स दिया करते थे, मतलब उनका प्रवचन हुआ करता था. तो उनका प्रवचन देखने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए काफी लोग आया करते थे. तो एक लड़की भी आया करती थी उनका प्रवचन सुनने के लिए, और चूंकि वो लड़की एक दूर गांव से थी, तो वो क्या करती थी कि एक छोटा सा सरोवर हुआ करता था, एक छोटा सा रिवर हुआ करता था. तो चूंकि गर्मी का मौसम था, उसमें पानी कम था, तो वो क्या करती थी कि चल के आ जाती थी और उनके लिए खाना लाया करती थी. तो क्या हुआ कि तब अचानक क्या हुआ कि गर्मी का मौसम बीत रहा था और बारिश का मौसम आने वाला था. तो लड़की को चिंता हुई. उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं तो आपका जो है ये जो भी आप प्रवचन करते हो उसको सुनने के लिए आती हूँ रिवर को क्रॉस करके, तो आप अब लेकिन बारिश आने वाली है, बाढ़ आ जाएगी, पानी बढ़ जाएगा रिवर में, तो मैं कैसे आ पाऊंगी. और गुरु को भी चिंता हुई कि अगर ये लड़की आ नहीं पाएगी तो मुझे भोजन नहीं मिलेगा. तो गुरु ने क्या किया,
कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं। और उन्होंने एक पेपर में एक मंत्र लिख के दे दिया और बोला कि तुम ये मंत्र पढ़ना और फिर तुम पानी के ऊपर भी चल के आ सकती हो। गुरुजी ने ऐसा कह दिया उस लड़की को बहलाने के लिए। सोचा चलो कोई बात नहीं, ये लड़की भी बहल जाएगी। और फिर अचानक देखा तो अगले दिन जोरदार बारिश हुई और पानी में एकदम बाढ़ आने लगी। पानी एकदम उफान पे था और इतना ज्यादा पानी था कि वो लड़की के सर तक पानी आ रहा था। अब गुरु ने समझ लिया कि भाई आज लड़की तो आने वाली नहीं है, आज भोजन मिलेगा नहीं, तो अब मैं करूं तो क्या करूं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में लिखा नहीं है खाना, तो चलो भगवान का नाम लेते हैं तब तक। तो वो भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन अचानक देखा तो लड़की आ गई भोजन लेके। तो गुरुजी बड़े आश्चर्य हुए, बोले अरे ये पानी में इतना बाढ़ आ गया, तुम कैसे आई बेटा। तो उसने कहा कि आपने जो मंत्र दिया था, मैंने उस मंत्र को पढ़ा और मंत्र को पढ़ने के बाद मैं पानी के ऊपर चल के चली आई। तो गुरुजी ने सोचा यार मैंने तो इसको ऐसे ही कुछ लिख के दे दिया था मंत्र, तो और फिर भी ये कैसे चली आई। तो उन्होंने कहा कि चरा मुझे दिखाओ कौन सा मंत्र था। तो बोला गुरुजी वही जो आपने लिख के दिया था। बोला अच्छा 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 अच्छा, जो मैंने लिख के दिया था ओ। तो फिर वो बोला कि चलो हम भी साथ में चलते हैं। तो लड़की और वो साथ में चले। लड़की ने क्या किया, वो मंत्र पढ़ने लगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आप सभी अलग अलग भगवान को मानते हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम्स है, सब अपने अपने भगवान को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले देते हैं कि उसने कहा ओम वासुदेवाय नमः, तो वो क्या की बोलने लगी ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ऐसा करते हुए जब वो चलने लगी रिवर के ऊपर, तो पानी के ऊपर उसके पैर चलने लगे और वो पानी के ऊपर चलकर नदी को क्रॉस कर ली। अब जो है संत ने सोचा यार मेरा दिया हुआ मंत्र तो काम कर गया। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अभी एक काम करता हूं, ये मंत्र मैं अभी सबको दूंगा तो मैं तो फेमस हो जाऊंगा। आई एम गोइंग टू द फेमस सेंट ऑफ द इंटर वर्ल्ड, मैं फेमस सेंट हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा लेकिन ये मंत्र दूसरे को देने से पहले एक काम करता हूं, मैं ना इसको पहले खुद ट्राई कर लेता हूं, इस मंत्र को मैं खुद ट्राई कर लेता हूं। और उन्होंने क्या किया कि वो मंत्र को पढ़ा और लेकिन उनको थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े को ऊपर उठा लिया, धोती को ऊपर उठा लिया और धीरे से वो मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिए। अब जब वो पढ़ने लगे मंत्र को तो तभी अचानक से वो पानी के अंदर डूब गए और मर गए। तो जैसे ही मर गए संत तो पहुंचे सीधा कन्हैया के पास, वासुदेव के पास। तो उन्होंने पूछा कि वासुदेव, मैंने उस लड़की को मंत्र दिया, वो मेरा मंत्र पढ़कर वो रिवर को भाई पानी के ऊपर चलकर क्रॉस कर दी और मैंने भी वही मंत्र पढ़ा, लेकिन मैं तो सीधा पहुंच गया आपके पास, सीधा मैं खत्म। तो कन्हैया हंसने लगे और उन्होंने कहा कि दैट गर्ल शी हैज बिलीव्ड मी, शी हैज ट्रस्टेड मी एंड यू हैज टेस्टेड मी। उसने तो ट्रस्ट किया और तुमने मेरा टेस्ट किया। उसने ट्रस्ट किया इसलिए वो पार हो गई और तुमने टेस्ट किया इसलिए डूब गई। तो मेरे दोस्त, मुझे कई लोग पूछते हैं कि जैसे आसाराम बापू हैं, अब आसाराम बापू हैं, उनके काफी शिष्य हैं, कम से कम लाखों शिष्य हैं। तो मुझे किसी ने पूछा कि यार आसाराम बापू तो खुद जेल पहुंच गए, तो उनके शिष्य क्या वो भी मतलब ऐसे ही नरक में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, आसाराम बापू ने जो किया वो भुगतेंगे, लेकिन उनपे जिन्होंने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके जो अच्छी अच्छी बातें सुनी, तो वो तो स्वर्ग पहुंचेंगे। इसलिए अगर आप आसाराम बापू के भक्त हैं तो घबराइए नहीं, विक्रम सिन्हा, आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। जय हो। तो कहने का मतलब ये है कि इफ फर्स्ट ऑफ ऑल whenever you are making your guru, I mean whenever you make your guru, first test him. Once you test him, you trust him, and once you have trusted, then never test him, then always believe in him. और ये कब आपको सुनने को मिला? You need to believe in him. अब why you need to believe in him? I am going to tell you 3-4 more stories, and one story is the famous guru and shishya relationship is what Dronacharya.
So Dronacharya award is also there in India, and even Arjun award is also there. So what happened, like when Dronacharya was guru of 105 disciple, 100 were Kauravas and 5 were Pandavas. So one day what he thought that कि let's चलो इन लोग का टेस्ट लिया जाए, और they were not aware that he is testing him. And you might have heard about this story, but once again you listen me. उन्होंने क्या किया कि एक मछली रखा, और जैसा कि आप लोग जानते हैं उन्होंने पहले कहा कि भाई कौन लगाएगा, तो कौरव बोले हम लगाएंगे. तो उन्होंने कहा पहले निशाना लगाने से पहले ये बताओ कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है. तो किसी ने कहा मुझे झाड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा भाई मुझे गुरुजी आपकी चोटी दिखाई दे रही है, गुरुजी की और कुछ दिखाई दे रही है, मतलब गुरुजी दिख रहे थे, टीचर दिख रहे थे, ऐसे कई लोग को कई चीजें दिख रही थी. तो उन्होंने सबको कहा चलो बाजू हट जाओ, आप लोग जो है निशाना नहीं लगा सकते. फिर उन्होंने क्या किया, पांडवों से पूछा, तो पहले 2 बड़े भाई से पूछा, उनको पूछा आपको क्या दिख रहा है. तो उन्होंने कहा मुझे ये झाड़ दिख रहे हैं वगैरह वगैरह. तो उन्होंने कहा तुम भी हट जाओ. फिर उसके बाद अर्जुन आए, अर्जुन ने अपना स्टांस लिया, ही टुक अ स्टांस एंड ही वांटेड टू एम. एंड बिफोर दैट गुरु द्रोणाचार्य हैज आस्क्ड हिम कि आपको क्या दिखाई दे रहा है. सो व्हाट अर्जुन हैज टोल्ड, गुरु द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं. उन्होंने कहा नहीं. उन्होंने कहा क्या तुम्हें झाड़ दिखाई दे रहा है, बोला नहीं. क्या तुम्हें वो मछली दिखाई दे रही, कहा नहीं. तो बोला फिर क्या दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है. तो कहा शूट, और जैसे ही शूट किया सीधा आंख में निशाना. तो ये क्या होता है, ये होता है फोकस. सो यू नीड टू फोकस इन लाइफ एज अ स्टूडेंट. सो एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट what and next story is that कि one day when द्रोणाचार्य was bathing in a river, वो नहा रहे थे, तो अचानक एक मगरमच्छ आ गया, और जैसे ही मगरमच्छ आया उसको देखकर जो है सब के सब भाग गए. उनके पूरे शिष्य भाग इसलिए गए कि कोई बड़े को बुलाने गए ताकि उनको बचा सके. लेकिन वहां पर केवल एक अर्जुन खड़ा था जो अपने धनुष से उस क्रोकोडाइल को मारने के लिए दौड़ा. तभी अचानक वो क्रोकोडाइल गायब हो गया. तो इससे यह साबित होता है कि वॉट एवर ही हैज लर्न फ्रॉम द्रोणाचार्य, ही यूज्ड टू बिलीव इन हिज गुरु. वो अपने गुरु में बिलीव करते थे कि जो उन्होंने सिखाया है वो सही है और मैं वो करूंगा. तो उनमें बिलीव था, और इसीलिए जो है अर्जुन हैज बिकम द फेवरेट डिसाइपल ऑफ द्रोणाचार्य. But one day what happened when Arjun was doing a training program, I mean he was practicing with bow and arrow, and suddenly he saw that one dog came, और वो कुत्ते के मुंह में 3 बाण लगे हुए थे, लेकिन तीनों बाण से उसे कुत्ते को घायल नहीं हुआ था. तो उन्होंने सोचा यार ये 3 बाण लगे और ये कुत्ता घायल क्यों नहीं है. तो फिर उन्होंने वो कुत्ते का पीछा किया, और जब पीछा किया तो देखा वहां पर एक लड़का खड़ा था जो बहुत दूर एक झाड़ के पास प्रैक्टिस कर रहा था, और उसके आगे द्रोणाचार्य का फोटो लगा हुआ था, द्रोणाचार्य का स्टेचू था. तो ही थॉट दैट यार ये है कौन. उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है. उसने कहा एकलव्य. कहा कि तुमने ये धनुर्विद्या कहां से सीखी. बोला द्रोणाचार्य से. तो अर्जुन जो है बोला अरे ये द्रोणाचार्य ने इसको इतनी अच्छी शिक्षा दी. तो बोला कि चलो, और भागते भागते द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बोला गुरुदेव आपने मेरे अलावा भी और मेरे से अच्छी शिक्षा दी किसी और शिष्य को. तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमसे बेस्ट जो है शिष्य कोई हो ही नहीं सकता. तो उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन लेके गए, बोले चलो मेरे साथ, और उस लड़के के पास ले जाकर खड़ा किया, और उस लड़के से पूछा तुम्हें किसने सिखाया. तो उन्होंने कहा गुरु द्रोणाचार्य ने. तो गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया. तो अर्जुन ने कहा देखो ये कह रहा है गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया. तो लड़के ने कहा कि एक मिनट क्या नाम है आपका. कहा अर्जुन. बोला अर्जुन ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा है कि मैंने द्रोणाचार्य से सीखा है, मुझे द्रोणाचार्य ने सिखाया नहीं है. मैंने द्रोणाचार्य से सीखा है, द्रोणाचार्य ने से मुझे सिखाया नहीं है. जिस प्रकार आजकल हम और आप गूगल और यूट्यूब से सीखते हैं. गूगल
and YouTubes are also the best guru of our life. Now, what is the importance of guru? What is the importance of mentor? What are the importance of trainer in your life? Then I'll quote some live example of my training program, that what some good story of my training program. So one day what happened, Brahman was there, so he used to go to do puja in one palace, king's palace. तो वो पूजा करते समय जो है पूजा करता और अंत में बोलता कि हरि मिलेंगे तो मुक्ति मिलेगा। तो वहां पर एक तोता था, एक पिंजरे में एक तोता था। वो तोता बोलता था कि ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है, और उनको बड़ी शर्म आती कि ये तोता ऐसे क्यों बोलता है कि ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो पूजा करने के लिए महल पहुंचे, और जैसे ही पूजा करके वो निपटे तो उन्होंने कहा हरि मिलेंगे तो मुक्ति मिलेगी। तो तोते ने बोला कि ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। अब ब्राह्मण परेशान, बोला अब करूं तो क्या करूं। फिर ब्राह्मण अपने गुरु के पास गया, और ब्राह्मण अपने गुरु के पास पहुंचा एंड उसको बोला कि गुरुदेव, एक तोता है, उसने मुझे बड़ा परेशान किया है। जब भी मैं राजा के यहाँ पूजा करने जाता हूं, ये तोता कहता है, जब भी मैं कहता हूं हरि मिलेंगे तो मुक्ति मिलेगा, ये बोलता है कि ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। तो गुरु ने कहा ठीक है, चलो उस तोते से हम मिलते हैं। तो गया और तोते के पास गया और उस तोते से पूछा कि तोता, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। तो तोते ने बताया कि एक्चुअली हुआ ऐसे कि पहले मैं उड़ा करता था, अपने पेड़ों पे बैठा करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ मंत्र बोला, ओम वासुदेवाय नमः। तो मैंने क्या किया, मैंने रिपीट कर दिया ऐसे तोता, ओम वासुदेवाय नमः। तो ऋषि को लगा अरे वाह, ये तो अलग सा तोता है, ये तो मंत्र पढ़ता है। तो उन्होंने क्या किया मालूम है, उस तोते को ऋषि ने पिंजरे में बंद कर दिया। अब बोला अब मैं फ्री उड़ता था, अब पिंजरे में बंद हो गया। तो बोला फिर बोला उसके बाद उस ऋषि के पास एक बहुत बड़ा सेठ आया पूजा कराने के लिए, और जब पूजा कराने आया तो उसने मुझे देखा, मैं मंत्र पढ़ने लगा ओम वासुदेवाय नमः। तो जब सेठ ने देखा तो उसने ऋषि से मुझे खरीद लिया और ले गया अपने इधर, और मुझे चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। तो बोला उसके बाद एक दिन राजा का बर्थडे था। तो राजा का बर्थडे था तो सेठ ने सोचा कि अब मैं क्या गिफ्ट दूं इस राजा को। तो उसने सोचा ये चमत्कारी तोता है, इसको ही गिफ्ट कर देता हूं राजा को। तो उसने क्या किया, इस चमत्कार मुझे एक राजा को गिफ्ट कर दिया, और मैं महारानी को बहुत पसंद आया क्योंकि मैं बोलता था। तो महारानी ने क्या किया, महारानी ने मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। अब मैं क्या किया, सोने के पिंजरे में बंद हुआ, तो जब तक मैं बोलता रहा ओम वासुदेवाय नमः, मैं लोहे के पिंजरे में बंद हुआ, फिर उसके बाद चांदी के पिंजरे में बंद हुआ, फिर उसके बाद सोने के पिंजरे में बंद हुआ, लेकिन मैं तो रहा पिंजरे के अंदर ही बंद। तो ओम वासुदेवाय नमः से तो मुझे मुक्ति मिली नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि यह ब्राह्मण झूठ बोलता है। तो गुरु ने क्या किया कि उस तोते के धीरे से जाके कान के अंदर कुछ बोला और गुरु चले गए। तो अगले दिन क्या हुआ कि तोता जो है वो मरा हुआ था पिंजरे के अंदर, और फिर सैनिकों ने सोचा कि अरे तोता तो मर गया। तो जैसे ही पिंजरा खोला, तोता फटाक से उड़ के भागा, और भागते भागते तोते ने उड़ते उड़ते बोला कि गुरु मिलेंगे तो मुक्ति मिलेगी। तो दैट इज द रीजन व्हाई टीचर्स, guru, mentor, whatever you call in your life, they are important. They are important in your life. Now, I'm going to share with you some of my training. In total course of my career, I have trained somewhere around 3,500 people. Now, whether I have trained them or I transformed them. So I feel happy that when people call me that they have become zonal manager, they have become national sales manager, I feel happy. And when they call me and tell me that sir, you have not only trained me but you have transformed my life,
Now, I'll tell you, when I became a new trainer, when I was newly joined as a trainer, so there was one incident. मैं क्या हुआ कि मैं सिप्ला कंपनी में जब मैं सेल्स से ट्रेनिंग फील्ड में गया, तो मैं ऐसे ट्रेनर जब हेड ऑफिस पहुंचा, तो मेरा ट्रेनिंग का दूसरा तीसरा महीना ही था. तो क्या हुआ कि मैं ट्रेनिंग लेने के लिए अपने ट्रेनिंग रूम में पहुंचा. तो क्या हुआ कि चूंकि फार्मा फील्ड में ट्रेनिंग लेने के लिए नए नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो उनको मेडिकल और सेल्स टेक्निक पढ़ाना होता है. तो उस समय क्या हुआ कि वन ऑफ माय नेशनल सेल्स मैनेजर, और यू विल कॉल बिजनेस हेड, ही केम दैट डे एंड ही टोल्ड समथिंग टू मी. ही टोल्ड दैट कि देर इज वन स्टूडेंट in your training program. I'm one medical representative in your training program. His name is Mr. Pankaj. And वो नेशनल मैनेजर ने मुझे कहा कि ये पंकज जो है ये मेरा भांजा लगता है. तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपका भांजा लगता है? तो कहे हाँ, कहे इसका थोड़ा ध्यान रखना. अब नेशनल मैनेजर ने तो मुझे बोल दिया. अब भाई वो हेड है, डिविजनल हेड थे, तो उन्होंने कह दिया कि ये मेरा भांजा है, इसका थोड़ा ध्यान रखना. अब अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा कि ये मेरा नेशनल मैनेजर का भांजा है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? मैं मन में सोचने लगा, यार ये नेशनल मैनेजर का भांजा है और इन्होंने कहा कि इस पे ध्यान रखना, तो मैं अब करूं तो क्या करूं? मेरे पास दो रास्ते थे. या तो मैं उसको बिल्कुल परेशान नहीं करता, और जब मैं एवरीडे उसका टेस्ट लेता तो मैं उसको बाई पास कर देता और फाइनली बोल देता कि यस, आई मीन ही इज थ्रू, आई मीन इसका मेडिकल अच्छा है, सेल्स अच्छा है, उसको ग्रेड अच्छा दे देता और वो फील्ड पे जाके लग जाता. लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक बार देखा जाए कि इसका भांजा है कैसा. तो मैंने उसको बुलाया. मैंने कहा कि आप क्या करो कि स्टेज पे आ जाओ, फ्रंट पे आ जाओ, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मेडिकल बताना होता है डॉक्टर के सामने, तो एक बुक दिया जाता है जिसको विजुअल एड कहते हैं, तो उसको पढ़ना होता है. तो अभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब बोलना जरूरी है, तो बोलना तो आना चाहिए. तो मैंने उसको कहा कि चलो बोल के दिखाओ, इस प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल करके बताओ. तो वो बेचारा इतना घबराया था, पतला सा लड़का था, और आया स्टेज पे, और स्टेज पे आते आते ही पसीना पसीना हो गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था. तो मैंने कहा यार ये तो नेशनल मैनेजर का भांजा है, अब इसे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या कसूर किया जाए तो सलूक किया जाए. तो मैंने सोचा अब इसके साथ किया क्या जाए. फिर मैंने सोचा कि देखो, मैं ट्रेनर हूं, मेरा काम क्या है, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ. मैं चाहता तो उसे छोड़ देता, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि मैं ट्रेनर हूं तो इसे ट्रेन करके रहूंगा. तो मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है कि तुम ये मेडिकल वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आप इतना तो बोल सकते हो, वेरी गुड मॉर्निंग. हमने कहा चलो इतना बोलो, वेरी गुड मॉर्निंग, स्टेज पे खड़े होके. तो उसने मुझे कहा, बोला सर मैं पहली बार इतने लोगों के सामने आकर खड़ा हुआ हूं और मुझसे नहीं बोला जाएगा वेरी गुड मॉर्निंग भी. तो और डर डर के बोलने लगा, एकदम कांप रहा था. तो मुझे देखो कभी कभी क्या होता है कि टीचर को और ट्रेनर को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अगर आपको सिखाना है तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ये सब बहाने मत बनाओ, जब तक तुम गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे तब तक तुमको बैठने नहीं मिलेगा. तो बोला गुड मॉर्निंग. मैंने बोला गुड मॉर्निंग बोलो. बोलता था गुड मॉर्निंग. अरे मैं बोला आवाज बढ़ाओ, आवाज. मैं बोला अगर तुम आज ये जो आपके दोस्त जैसे हैं, जो आपके जैसे यहां पर पढ़ने आए हैं, उनके सामने नहीं बोल पाओगे तो हाउ यू विल बी एबल टू स्पीक इन द फ्रंट ऑफ डॉक्टर. सो यू हैव टू स्पीक एनी हाउ. सो क्या हुआ कि मैंने उसको कहा बोलो गुड मॉर्निंग. तो बोला गुड मॉर्निंग. और बाकी उसके दोस्त थे वो हंसने लगे उसके ऊपर, जो और लड़के आए थे. तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि हंसने दो इसके ऊपर, जब लोग हंसेंगे तभी इसको समझ में आएगा. उसने कहा, फिर हमने कहा गुड मॉर्निंग बोलो. बोला गुड मॉर्निंग. एंड बिलीव मी, दैट डे ही वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स जस्ट टू से गुड मॉर्निंग. मैंने उसको कहा कि जब तक तुम्हारी आवाज मुझसे ज्यादा नहीं आएगी तब तक तुम वहां पर खड़े रहोगे.
तो उसने कहा गुड मॉर्निंग। मैंने जोर से चिल्लाया गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा तुम्हारी आवाज मुझसे ज्यादा आनी चाहिए, तभी मैं तुमको छोड़ूंगा। तो अब वो बोलने लगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और उसको मेरे ऊपर गुस्सा भी आने लगा। वो बोलने लगा कि यार अब इसका कंप्लेन तो मैं अपने मामा से करूंगा जो नेशनल मैनेजर हैं, अब इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। उसके मन में गुस्सा भी आने लगा होगा। मैं उससे परेशान नहीं था। मैंने कहा जब तक ये बोलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अब क्या हुआ कि दोनों में कंपटीशन लगा। मैंने बोला गुड मॉर्निंग बोलो, तो उसने कहा गुड मॉर्निंग। मैंने कहा मेरे से ज्यादा जब तक तुम्हारी आवाज नहीं आएगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर क्या हुआ कि कई लोगों ने मुझे कहा कि सर जाने दो इसको। मैंने कहा यू शट अप, पहले इसको बोलने दो। फिर उसके बाद जो है वो रोने लगा, और इतना ज्यादा रोया कि उसके आंसू भी खत्म हो गए। अब फाइनली उसको मेरे ऊपर गुस्सा आया और उसने हौसला बुलंद करके जोर से बोला। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। उसने मेरे से ज्यादा जोर से चिल्ला के बोला वेरी गुड मॉर्निंग। और फिर जो है जितने उसके साथी थे सब तालियां बजाने लगे, और मैंने जाकर उसको गले लगा लिया और मैंने कहा कि यही तुमको करना है मेरे दोस्त, तुमको लाइफ में यही करना है। जब तक तुम रोगे दुनिया रुलाएगी, और जब चिल्ला के बोलोगे तब दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। इसलिए तुम आज ये सीखे हो। और उसके बाद चमत्कार मैंने देखा। वो जो लड़का था, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग टू हिज मामा, जो नेशनल मैनेजर थे, और उनका नाम मैं ले लेता हूं क्योंकि मैं उनको प्रणाम भी करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दिया था एज ए ट्रेनिंग मैनेजर, मिस्टर रमेश जुनेजा, जो सिप्ला में थे बिजनेस हेड और आज वाइस प्रेसिडेंट है सन फार्मास्यूटिकल में। तो उनको मेरा सादर नमन प्रणाम एंड गॉड ब्लेस यू मिस्टर जुनेजा। सो इनके भांजे थे वो। अब ये उसने कंप्लेन नहीं किया, या हो सकता है कंप्लेन भी किया हो, बात किया हो उनसे, लेकिन अगले दिन जब हम आए, ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुआ सुबह सुबह, तो हमने कहा कि कौन सबसे पहले सुनाएगा। तो ही स्टूड फर्स्ट एंड टोल्ड दैट कि टुडे आई एम गोइंग टू डू डिटेलिंग। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिटेलिंग मतलब वो जो मेडिकल के बारे में बताते हैं उसको डिटेलिंग कहते हैं। और वो रात भर पढ़ाई किया, और लोगों ने बताया कि सर आप के वजह से वो रात भर किया है, और उसने ऐसी डिटेलिंग की, उसने परफेक्ट डिटेलिंग तो नहीं की लेकिन कंपैरेटिवली इतनी अच्छी उसने जो बातें की, डिटेलिंग की उसने, कि मैं ताली बजाने लगा। और तब मेरे आंख में हल्के हल्के से आंसू आ गए, और वो मेरे आके पैर पड़ा, और पैर पड़ के बोला कि सर आपने मुझे एक नॉर्मल आदमी से एक अच्छा सेल्समैन बना दिया, और जिंदगी में मैं पहली बार इतने सामने लोगों के सामने बोला हूं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन समबडी कम्स एंड टच योर फीट, व्हेन यू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, तब जाके आपको खुशी मिलती है कि आपने ऐसे ट्रेनर, ऐसे टीचर कुछ काम किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आज के जमाने में क्या हो रहा है। Nowadays what happens, because now I'm also having 2 kids with me, okay? तो मैं जब गया प्रिंसिपल से मिलने के लिए, और जब मैं उनसे पूछता हूं और आजकल कैसी पढ़ाई होती है, अब आप सोच लीजिए कि आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा बचपन में। तो जब साइकिल चलाना आप सीख रहे थे तो आपकी माँ ने या भाई ने आपको क्या किया होगा, साइकिल के ऊपर बिठाया होगा, और साइकिल के ऊपर बिठाने के बाद आपको पीछे से धक्का दिया होगा, थोड़ा सॉरी या तो धक्का दिया होगा, और धक्का देने के बाद कुछ दूर धक्का देते देते जब उनको लगा होगा कि आप बैलेंस करने लगे हो साइकिल को, तो उन्होंने छोड़ दिया होगा और आप साइकिल चलाने लगे होगे। ऐसे ही हुआ होगा ना। लेकिन कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? तो क्या होगा कि अभी क्या होगा कि धक्का देके फिर आप साइकिल चलाना सीख गए। लेकिन अगर समझो आज के डेट में ये लोग क्या करते हैं स्कूल में, पता है? स्कूल में समझिए कि आपको स्कूल के क्लास में साइकिल चलाना सिखा रहे हो, तो कैसे सिखाएंगे? दिस इज एंड पाइडल, इसको क्या कहते हैं? पाइडल बोलते हैं, इसको सीट बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, इसको इंजन बोलते हैं। अगर आप बाइक सीख रहे हो तो ये थियरी में सिखाएंगे।
फिर उसके बाद बोलेंगे व्हेन फोर्स एंड मोमेंटम, अगर एक स्पीड लेने लगेगा देन यू नीड टू बैलेंस एंड ऑल दोस थिंग। मतलब पूरी थियरी में आपको सिखाएंगे साइकिल चलाना, फोर्स, स्पीड, मोमेंटम, एवरीथिंग। तब उसके बाद आपको क्या बोलेंगे कि चलो अब पीएचडी कर लो। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप साइकिल के ऊपर थीसिस लिखोगे कि साइकिल एक लोहे का बना हुआ पदार्थ होता है जिसपे एक सीट लगी होती है, आगे हैंडल होता है, नीचे 2 टायर होते हैं और उसके बीच में वो क्या होता है पता नहीं, वो जो बोलते हैं ये होता है, वो होता है, तो मडगार्ड होता है, पता नहीं क्या 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 होता है। तो आप जो है फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पीएचडी करेंगे। पीएचडी करने के बाद आप थीसिस लिखेंगे। थीसिस लिखने के बाद आपको ग्रेड्स मिलेंगे। ए ग्रेड से आप पास हुए, साइकिल चलाने में आपको ए ग्रेड मिलता है, फर्स्ट क्लास, आप पास हो गए। और फिर उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे स्कूल से और आपके हाथ में साइकिल दिया जाएगा तो आपके साथ क्या होगा, आप साइकिल चला पाएंगे? साइकिल को आप पकड़ेंगे वैसे ही गिर जाएंगे धड़ाक से। और जब तब तक आप बड़े हो चुके होंगे, हड्डी में चोट भी बहुत ज्यादा आएगी महाराज। जो साइकिल चलाते हुए गिरा होगा उसको पता होगा। सो दिस इज द वे नाउ अ डेज वी आर टीचिंग टू आवर किड्स। सो वी आर टीचिंग देम थियरी and not practical. So are we in a right direction? So on the occasion of Guru Purnima, we all teachers, we all trainers need to think that कि क्या ये तरीका है। लेकिन हाँ, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे गुरु हैं, जैसे कि 3 इडियट्स में जो दिखाया गया था, जो लद्दाख में है गुरु, आप सभी उनका नाम जानते हैं। वो प्रैक्टिकली लोगों को सिखाते हैं कि कैसे टीचिंग किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे पसंद आता है कि मैं उनका टेड टॉक सुन रहा था। आई वॉज लिसनिंग द टेड टॉक ऑफ मिस्टर आनंद कुमार, या हिज नेम इज आनंद कुमार ओनली, सुपर 30। You have seen Super 30 film, na? So in that film you have seen the biography of Anand Kumar. So one day I was listening the TED talk of Anand Kumar. तो आनंद कुमार जो टेड टॉक में नॉर्मली क्या होता है, यू गेट अ टाइम ऑफ 18 मिनट्स टू स्पीक एंड यू हैव टू बी वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी एक्सप्रेसिव। बट आनंद कुमार जी के हाथ में एक पेपर था, ठीक है, और पेपर में मैंने कुछ वर्ड नोट किए हैं जो वो बोल रहे थे। और अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि आनंद कुमार का इंग्लिश देखो कैसा है। हाँ, जैसे कि उन्होंने वर्ड यूज किया नेवर। नेवर को अक्सर जो है, जो मतलब ठेठ बिहारी होते हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं या यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वो जब उनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो नेवर को नेभर बोलते हैं, और वेजिटेबल को वेजिटेबल बोलते हैं। ऐसे अक्सर वर्ड वो यूज करते हैं। और उन्होंने एक वर्ड भी यूज किया, और वो ही वॉज स्पीकिंग इन द फ्रंट ऑफ ऑल फॉरेनर्स इन दैट टेड टॉक, और उन्होंने शोल्डर को सोल्जर कहा, बट किसी ने उनके ऊपर हंसा नहीं। नोबडी हैज लाफ्ड एट हिम। वाई? बिकॉज दैट आनंद कुमार हैज till date how many IAS officer he has produced, you know? I am having that statistic. It is somewhere around 212 IAS officers. And he was telling a story about Santosh, he was a vegetable vendor and he was not having money to learn, but because of Anand Kumar has transformed his life. He has earned the scholarship and now he is the scientist in Belgium, and he is respected by all scientists. And this is not the one story, there are 212 stories which is produced by Anand Kumar. So today at the occasion of Guru Purnima, I salute to Anand Kumar for his dedication, because during his school days also, he was in childhood also, he was a very good mathematician. And for your kind information, this Anand Kumar, and especially I have seen whoever belongs from Bihar, mostly they are excellent in mathematics, except Mr. Vikram Sinha.
But Vikram Sinha mathematics is something different. He is the disciple of Asaram Bapu, na. So his mastery is in different thing. So I was talking about Anand Kumar. So Anand Kumar has made somewhere around 212 IS officer, and in his childhood he was a great mathematician, and he has also written so many things, and his so many techniques was posted in journal and published also. And because he has earned a scholarship also from Cambridge University, but because of the lack of money, and his father also expired, so lot of load on him, and that is the reason why he was not able to study. But because he was excellent in his area, so he has started one university called Super 30, and now he is training all underprivileged people in Bihar. Now he want to extend across the country. So we are lucky that we are having these kind of students and these kind of trainers also. Okay, so because now like those who are listening me, maybe you have been student. Still we all are students. And if you want to become a great teacher, you have to learn every day from your student also, from your life also. But I want to quote that my best teacher were my suffering of life. I have suffered 3 times badly in my life. Once when I was I have completed college, and I was doing export and import management course, and at that time because of some incident while playing football, I had a very injury in my leg, and I have gone through operation, and then I was somewhere around for a month in a hospital, and I was not able to walk for almost 7 to 8 months. And when I was in a hospital, and ये जो चोट लगा था, इतना गहरा चोट था कि जब उसको ड्रेसिंग करते थे, उन्होंने क्या किया था, मुझे सेल्यूलाइटिस हो गया था. सेल्यूलाइटिस में आपका जो है ऊपर का स्किन जो है वो पूरा सड़ जाता है, तो उसको उन्होंने निकाला, और जब उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते थे, तो आई यूज्ड टू फील अ सफरिंग नियर टू डेथ. तो इनिशियली क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल में मिलने के लिए आपके फ्रेंड्स आते हैं, पूरे फैमिलीज आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फ्रेंड्स गायब, रिलेटिव्स गायब, फिर कौन बचता है, खाली आपके माँ बाप बचते हैं आपके पास. एंड देन व्हेन आई वाज लाइंग ऑन अ बेड, देन आई यूज्ड टू थिंक दैट कि यार अपन डरते किस बात से है, आखिर लाइफ में आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, देन व्हाई टू फियर. एंड वो इंसिडेंट ने मुझे सिखाया, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई हैव गॉन इनटू अ मैनेजमेंट क्लास, I have done one changes. I want to tell you that if you want to extract maximum from your guru or from your teacher, you need to do only one thing in life. आपको पता है कि मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट किस स्टूडेंट ने किया है इस पूरे वर्ल्ड में? अपने गुरु से सबसे ज्यादा किसने निचोड़ के निकाला है? यू कैन टाइप मी. इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल हु आर वॉचिंग. क्या आप बता सकते हो कि अब तक किस गुरु से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब मैक्सिमम निचोड़ा है? किस शिष्य ने ज्यादा सीखा है? सबसे ज्यादा किस शिष्य ने किस गुरु से सीखा है? कैन एनीबडी टेल मी? इफ यू नो यू टाइप, और इफ यू डोंट नो यू से नो ऑल्सो, सो दैट आई कैन कंटिन्यू. क्या आप बता सकते हो कि कौन से शिष्य ने अपने किस गुरु से ज्यादा निचोड़ा है? Swami Vivekanand, yeah. Manish has written Arjun. Arjun, great Manish. But who was the guru? Manish, you have, I appreciate even Swami Vivekanand also. Swami Vivekanand have extracted many things from his guru, Ramakrishna Paramhans. And Swami Vivekanand is excellent answer. But yes, Arjun is also excellent answer. 2 people have given me answer Arjun. One Manish and one Priyaji. So Manish and Priyaji, who was the guru of Arjun? Can you write?
Manish Tarwal, Krishna, Manish, great. Clap for Manish, clap for Manish Tarwal, great. अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुमको एक प्राइज भेजूंगा, मुझे एक एड्रेस भेजना. नहीं, एड्रेस नहीं, मैं तुमको आज ही मोबाइल पे एक प्राइज भेजने वाला हूं. तुमको एक प्राइज मिलने वाला है. एंड आफ्टर गेटिंग दैट प्राइज यू टेल मी दैट हाउ यू लाइक दैट प्राइज. सो दिस अवार्ड गोज टू मनीष तारवाल बिकॉज जब कृष्ण तो जब कृष्ण जी हमारा ये महाभारत में जब कौरव पांडव के बीच युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तो अर्जुन ने अपने शस्त्र को नीचे रख दिया और उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड आस्किंग कृष्णा अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ही हैज आस्क्ड कृष्णा को उन्होंने इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा. अर्जुन जो है, कृष्ण साथ में खेले हुए थे. कृष्णा वॉज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ ऑफ अर्जुन and they were having a very good relation. They were both cousin also, but Krishna has never told Bhagavad Gita to Arjun unless and until Arjun has asked question to him. So the best way to extract your guru is to ask lots of question. Only question can give you knowledge. And by asking question only you can extract maximum from your guru. तो जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मैं ये अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आप गीता पढ़ोगे, 18 चैप्टर है उसमें. आप जब गीता को पढ़ोगे तो उसमें अर्जुन ने कम से कम 108 क्वेश्चन पूछा है. कम से कम 108 क्वेश्चन पूछा है. और उन्होंने कई चीज पूछे, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, मैं इनको क्यों मारूं, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज ऑल दोज थिंग्स. लॉट ऑफ क्वेश्चन ही हैव आस्क्ड एंड मैक्सिमम ही हैज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कृष्णा. एंड आज के डेट में उसे भगवत गीता कहा जाता है, जिसे लोग पढ़ते हैं, चाहे वो जेल में हो, मृत्यु के समय पढ़ते हैं, चाहे मृत्यु के पहले पढ़ो, चाहे जीवन में पढ़ो, आपको लाभ मिलेगा. तो द ओनली वन वे to extract maximum from your guru is to ask question. So today, before I end my session, first of all, thank you so much for all of you listening for me, and I want to thanks to few of my guru in my life other than my suffering. Suffering is my best guru in my life. Whenever I have suffered, I have tried to bounce back. And a year back I have suffered. Once again I have tried to bounce back. So suffering is the best thing of your life. दो चीज आप कर सकते हो. जैसे मैंने कल कहा था कि बारिश होती है तो आदमी दो चीज सोचता है, या तो भजिया तल के और चाय बना के खाता और पीता है, या तो एक आदमी परेशान रहता है कि मैं गीले कपड़े कहाँ सुखाऊं. तो दो तरह के लोग होते हैं. तो उसी तरह अगर सफरिंग में दो चीज होता है, या तो आप सुसाइड करोगे या तो आप दुनिया को रूल करोगे. It's a very sad that Sushant Singh, being a very, very, very excellent actor, I don't know why he has decided to suicide when he has made film on failures only. So we are waiting for that also. But before I end my session, I want to thanks everyone for listening. And my best guru was my suffering. And of course, your best guru as your my best guru is my dad. Every day I interact with him for almost 2-3 hours on mythology and all those things, and how we can relate this to recent life. So my dad is my guru and suffering are my guru. And along with that, if you ask me in my professional life, Mr. Ramesh Juneja, I love him a lot. He was my best guru because I have learned from him, whether he has taught me or not. And I have learned from one of my competitor, Mr. Sanjay. So when Sanjay has competed with me, I have learned a lot. I have tried to update myself. So he's also my guru. Sometimes your competitors are also your very, very good guru. Then of course I follow, if you ask me as a like real guru, whom you follow, I follow a lot of Sadguru's talk. And then my one of my best guru which I am going to gift to Manish is Amrit Deshmukh. Amrit Deshmukh is also my best guru. And yes, of course, nowadays we all are eklavya of Guru, Google and YouTube.
So we should not forget that whatever we want, we get. It was not so easy in our childhood days that if we want to know the, meaning of any word or anything, we used to, we have to refer book or ask some of our friends, or we have to seek somebody. But nowadays it is very easy. We can do Google and we can do YouTube. Yeah, of course. Now I am seeing some of Vikram's message that Vikram, Mr. Vikram, Mr. Panikar, Panikar, Yuddhkar, Panikar is your best guru. How about Kannan? Osho, okay. Osho is best guru for Vikram Sinha. I have been to Osho, and Osho has said one best thing. He told that कि what I say and what you understand, what I say and what you understood is none of my business. So that is the best thing which Osho has told. And Osho has told that कि आप इतना हद कर दो, कोई भी चीज करो, इतना हद कर दो, अगर उसके बाद भी अच्छा लगे तो करो, नहीं तो वो बेकार की चीज है. So you need to learn about that. And finally, before I sign off, one joke which recently Vikram has forwarded me on WhatsApp, that कि एक हस्बैंड ने अपने पत्नी को जाके कहा कि आप मेरी सबसे बड़ी गुरु हो. अपनी पत्नी को कहा कि आप मेरी सबसे बड़ी गुरु हो. तो पत्नी ने कहा नहीं, ऐसे क्यों बोलते हो, आपकी माँ आपकी सबसे बड़ी गुरु है, जाके उनको प्रणाम करो. तो जैसे ही पति गया अपने माँ के पास प्रणाम करने के लिए कि हे माँ, तुम ही मेरी सबसे बड़ी गुरु हो, तो माँ ने क्या जवाब दिया, हाँ तेरी पत्नी ने तेरे को सिखाया होगा, इसलिए तू मुझे आया गुरु बोलने के लिए. सो इट्स ऑलवेज गुड टू लाफ. सो गम को छिपा के जो हंसे वही इंसान है, गम को छिपा के जो हंसे वही इंसान है, हंसना तो है जिंदगी, गम तो बेजान है. सो एंजॉय योर लाइफ. If you are a trainer, remember that one thing you don't want to teach, you have to transform your life. And if you are a disciple or a student, तो आप अपना जो है कद जो है वो छोटा बनाइए आपको. क्योंकि जब इवन रावण वॉज ए वेरी गुड टीचर, रावण के पास जब राम ने कहा लक्ष्मण को कि जाओ रावण से सीख के आओ, तो लक्ष्मण ने क्या किया कि रावण के पास गए और रावण ने कुछ बोला ही नहीं. तो उन्होंने कहा यार, राम ने कहा कि रावण से सीख के आओ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मरने से पहले सीख के आओ. रावण इज अ वेरी गुड टीचर. तो राम के पास आए, तो राम ने पूछा कि तुमने रावण से क्या सीखा. तो उन्होंने कहा कि वो तो कुछ बोला ही नहीं. तो राम ने कहा कि तुम कैसे क्या कुछ बात किए. तो लक्ष्मण ने कहा कि तुम कहाँ बैठे थे. तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं रावण के सर के पास खड़ा था. तो कहा कि इसलिए अब की बार जाओ तो पाँव के पास खड़े होना. तो जब लक्ष्मण पाँव के पास जाके खड़े हुए, तब रावण हंसते हंसते बोला कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको अपने गुरु से सीखना है तो उसके सर की तरफ नहीं जाना है, उसके पैरों की तरफ जाना है. जय गुरुदेव, जय गुरु पूर्णिमा, जय हो सबकी.